પારુલ યુનિવર્સિટીના લો ફેસ્ટિવલમાં બોલતા લ્યુમિનેરિઝમના ડૉક્ટર સુબ્રમણ્યમ સ્વામી, એન વેંકટરામન અને સીજે યતીન્દ્રસિંહ ભારત વિશ્વભરમાં એવા દેશોમાં સામેલ છે કે જેમણે લોકશાહીના સાચા સારનું ઉત્થાન કરનાર બંધારણ ધરાવતી કાયદાકીય વ્યવસ્થામાં ઇતિહાસની લાંબી સફળતા મેળવી છે। આ અનુકરણીય લોકશાહી વારસા સાથે પારુલ યુનિવર્સિટીની કાયદા સંસ્થાએ એક IMUNના સહયોગની તેના વિદ્યાર્થીઓને કાયદાકીય બંધુત્વ, જાહેર વહીવટ અને રાજકીય બાબતોની સાચી ગતિશીલતાથી ઉજાગર કરવા માટે સંવિધાન પે ચર્ચા 2 દિવસ કાયદા મહોત્સવનું આયોજન કર્યું હતું। આ ઉત્સવમાં કેટલાક જાણીતી હસ્તીઓ દર્શાવવામાં આવી હતી જેમને કાનૂની સેવા, ન્યાયિક સક્રિયતા, નીતિ વિકાસ અને સામાજિક યોગદાન દ્વારા રાષ્ટ્રની સેવા કરવા માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું છે। ડૉક્ટર સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ એક પ્રતિષ્ઠિત રાજકીય વ્યક્તિત્વ સાથે માન્ય યતીન્દ્રસિંહ, છત્તીસગઢના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ હાઈકોર્ટ અને એડવોકેટ એન વેંકટરામન, એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા યુવા પેઢીને પ્રેરણા આપવા માટે આ ઉત્સવના મુખ્ય વક્તાઓમાં સામેલ હતા। વકીલો અને ધારાશાસ્ત્રીઓની ભારત બંધારણીય આદર્શોની ઉજવણી કરતી થીમને અનુરૂપ ઉત્સવમાં લોકતાંત્રિક મહત્વની વિવિધ મહત્વની બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા વિષયો ઉપર ચર્ચા સત્રો અને પેનલની ચર્ચાઓ દર્શાવવામાં આવી હતી। સ્પર્ધાના મુખ્ય હાઇલાઇટ્સમાં એક ઇન્ટરેક્ટિવ સત્ર હતું જ્યાં વિદ્યાર્થીઓએ મહેમાનોની સાથે વાર્તાલાપ કર્યો હતો। ડૉક્ટર સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ ભારત ધર્મનિરપેક્ષતાના માળખામાં હિન્દુ રાષ્ટ્ર તરીકે થીમ પર મહાન આંતરદૃષ્ટિ શેર કરી, જેને વિદ્યાર્થીઓની વિચાર પ્રક્રિયાને પડકારી અને તેમના જ્ઞાનને શુદ્ધ કર્યું। ડૉક્ટર સુબ્રમણ્યમ સ્વામી એક પ્રતિષ્ઠિત વરિષ્ઠ રાજકારણી, અર્થશાસ્ત્રી, આંકડાશાસ્ત્રી, કેળવણીકાર અને વિરાટ હિન્દુસ્તાન સંગમના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે, જે ભારતની સંસ્કૃતિ અને વારસાના ચાર પર યુવાનો શિક્ષણ માટે પ્રતિબદ્ધ સંસ્થા છે। સંસ્કૃતિ અને વારસાના સાર પર યુવાનોના શિક્ષણ માટે પ્રતિબદ્ધ સંસ્થા છે। ડૉક્ટર સ્વામીએ દેશના ન્યાયિક સક્રિયતા અને કાયદાકીય સુધારના સંદર્ભમાં પણ નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે, જેમાં નોંધપાત્ર સુધારા પરિણામે અરજીઓ અને જાહેર હિત અરજીઓ કરવામાં આવી છે। દિવસના કાર્યસૂચિને ચાલુ રાખી મુખ્ય ન્યાયાધીશ યતીન્દ્રસિંહે, જેઓ કાયદા ક્ષેત્રમાં જ્ઞાન અને શાણપણના અજોડ આધારસ્તંભ છે, વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાનની સફરમાં લઈ ગયા અને થીમ રોડ એડવોકેસી પર પ્રકાશ પાડ્યો। કાયદાકીય કુશળતા અને વકીલાત કૌશલ્યો દ્વારા ન્યાયનું સશક્તિકરણ, તેઓ એક પ્રેરણાદાયી આઇકન, પરિવર્તનશીલ નેતા અને કાનૂની સમુદાયમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપનાર કાનૂની વ્યક્તિત્વ છે। કાનૂની વ્યવસ્થામાં તેમની કારકિર્દી દરમિયાન તેમણે અલ્હાબાદ કોર્ટના વધારાના એડવોકેટ જનરલ તરીકે પણ સેવા આપી છે અને અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના કાયમી ન્યાયાધીશ તરીકે બાદ છત્તીસગઢ હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે શપથ લીધા। વધુમાં અન્ય વક્તાઓમાં શ્રી એન વેંકટરામનનો સમાવેશ થાય છે, જેઓએ આસ્થા અને જુસ્સાના આધારસ્તંભ છે। કાનૂની વ્યવસાય, તેઓ એક વિશિષ્ટ કાનૂની વિદ્વાન વરિષ્ઠ તરીકે અને કરવેરા અને વાણિજ્ય કાયદામાં તેમની અનન્ય કુશળતા દ્વારા કાઉન્સિલર પછી સૌથી વધુ માંગવામાં આવતા એક છે, જેઓ હાલમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં ભારતના એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ તરીકે બેસે છે। શ્રી એન વેંકટરામન રાજ્યનીતિના નિર્દેશક સિદ્ધાંતો ભારતમાં 2024માં વિષય પર વક્તવ્ય આપ્યું હતું। આ સત્રો અને ચર્ચાઓએ યુનિવર્સિટીના કાયદાના વિદ્યાર્થીઓને કાનૂની ક્ષેત્રે કારકિર્દી તૈયાર માટે અત્યંત આવશ્યક વ્યવહારુ કાનૂની કૌશલ્ય પ્રદાન કર્યા। પારુલ યુનિવર્સિટી ઓફ લો અસરકારક તાલીમ અને કાયદાકીય સંશોધનોના સંપર્ક દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને કાયદાકીય શિક્ષણમાં સૌથી અગ્રણી એક્સપોઝર પ્રદાન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે। આ સંસ્થા સક્ષમ, વિવેચનાત્મક, વિચારસરણી, વિશ્લેષણાત્મક રીતે સશક્ત અને પ્રબુદ્ધ કાનૂની માનવ સંશોધનોના ભાવિને આકાર આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, જે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાનૂની બંધુત્વ તરફ યોગદાન આપી શકે છે। नहीं, मेरा पिटिशन कोर्ट में जज ने कोर्ट किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने मेरे पिटिशन को ही कोर्ट किया जो मैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जो ये क्रिमिनल पार्ट है कि आपको जेल भेजना, ये नहीं होना चाहिए। दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। इंग्लैंड जिसका कानून हमने नकल किया, उन्होंने भी हटा दिया है। का फाइन लगाओ, उनका कोई संपत्ति उठा लो, बट इसको जेल भेजना कि तुमने ठीक से नहीं बोला, वो अब बहुत पुराना हो गया, उसको हटाना चाहिए।
और मैंने ट्राई किया था, मैंने पिटीशन फाइल किया था, बट मोदी की सरकार के जो अटॉर्नी जनरल थे वो भी गुजरात के थे, क्या पता नहीं। हाँ, वो लंबा वाला। हाँ, तो तुषार मेहता नहीं, वो तो साधु संत है। वो मुडगल रोहतगी, हाँ, मुकुल रोहतगी, वो तो बदमाश नंबर 1 है। सर, अब मोदी को वैश्विक नेता मानते हो? किसमें? नहीं, आप अर्थशास्त्री में पूछ रहे हैं, 0। चाइना का की आक्रमण को बंद करने में 0। अब तुम लोगों को खुश करने में 100। वैश्विक माने ग्लोबल लीडर, क्यों? क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनके पैर पड़ते हैं। अच्छा, वो तुमने अरेंज किया था क्या? नहीं तो इनको क्यों दिलचस्पी है? अब इंटरनेशनल क्या है, कौन है, मैं भी जाता हूँ बाहर, तो मुझे ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो सोचता हूँ देश के अंदर तुम जाओ, मणिपुर में, वहाँ जाकर पैर छुआओ, फिर मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। विदेश में जाओ तो किसी भी अप्रवासी भारतीयों के से आप पैर छुड़ाने के, कोई अंग्रेज नहीं छूता है, कोई सफ़ेद चमड़ा नहीं छूता है। ये जो 9 साल पूरे हुए मोदी के, ठीक चल रही है। ये कहते हैं वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट, ये कहाँ से? हमारी जो जीडीपी है वो कोरोना के टाइम में बहुत गिरी, 16% गिरी, अभी तक वो ऊपर नहीं आ पाई। बाकी देशों में सब ऊपर हो गए। तो अब जो भी थोड़ा कुछ हमारी ग्रोथ रेट छोटा मोटा है, वो बड़ा चढ़ा कर दिखाती है जब आप बॉटम से कंपेयर करते हो। तो मेरे साथ डिबेट करने बोलो किसी को, तो आप ही करिए। पत्रकार लोग किसी सरकार के पक्ष में हैं, यानी दिल्ली सरकार की, और मुझे बुलाइए और कहिए कि इकोनॉमी में वास्तविकता क्या है बताइए, और मैं उसका धज्जी उड़ा दूंगा। सर, नए लॉ स्टूडेंट को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि अच्छे लॉयर बन सके? आप लॉयर बनते हैं। लॉयर तो बहुत महत्वपूर्ण पेशा होने वाली है 10 साल में, क्योंकि सब चीज़, सब कंपनीज, ये वो, वहाँ कानून, कोर्ट में जाना, कोर्ट में डिसीजन लाना, ये सब इतना हो गया कि लॉयर्स की जो महत्व बहुत बढ़ गई है। तो पहले मैं कहूँगा, अभी तो जो लॉयर्स कमा रहे हैं, जो अच्छे लॉयर्स हैं, वो तो ऐसा कमा रहे हैं, जो जितना अच्छे नहीं हैं, गांव से आए हुए लोग हैं, वहाँ के लोकल लेवल में डिग्री लेकर आए हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो मैं क्या बोलूँ, मैं यही कहूँगा कि सबको लॉ का सीखना चाहिए। और मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, परंतु कोई विश्वास ही नहीं करने के लिए तैयार है कि मैं वकील नहीं हूँ। कोर्ट में जाता हूँ तो मुझे परमिशन लेना होता है कि मैं वहाँ बहस कर सकूँ, पर मैं जाता हूँ, जज कहते हैं ये मत चल बोलो क्या है। तो एक विश्वास हो गया। तो लॉ तो वैसे भी सबको सीखना चाहिए, और महिलाओं को पर्टिकुलरली मैं कहता हूँ लॉ सीखो, लॉ डिग्री लो, बिकॉज वो सबसे जहाँ कमज़ोर हैं, वो यानी उनके ऊपर जो दमन आती है, वो आधा कारण है कि उनको कानून नहीं पता है। सर आजकल एक नए बाबा है, बाबा बागेश्वर, नाम नहीं सुना, जिनेंद्र शास्त्री, नाम नहीं सुना। नहीं, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो क्या है, मैं कैसे रोक सकता हूँ? हिंदू राष्ट्र पर कोई कानून नहीं बनी है कि एक ही सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ही बोल सकता और कोई नहीं बोल सकता, कोई भी बोल सकता है। तो मैं क्यों उसके लिए बोलूं? तो 2024 में आप क्या करके देख रहे हो? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो अभी हिंदुस्तान में कोई कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं सोचता था कि ये बन सकता था नरसिम्हा राव। जब मैंने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया तो सब कहते थे ये तो कभी नहीं बनेगा, बना दिया। तो ये हिंदुस्तान में भविष्यवाणी करना बहुत डेंजरस है इस मामले में, क्योंकि जो मोदी
अब मोदी मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मैं तो मेरी राय है कि मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया, तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। अमित शाह बोलते हैं हाँ लास्ट क्वेश्चन लेंगे। हाँ, अमित शाह बोलते हैं मोदी आएंगे 2024 में। तो अमित शाह को सुन लो, मेरी बात मत सुनो। दैट्स ऑल आई कैन से। The last question है जो क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ है जुडिशरी प्रभावित की जा रही है, ऐसा दबाया जा रहा है, प्रभावित की जा रही है जुडिशरी को भी। इन्फ्लुएंस हो रहा है जुडिशरी इन्फ्लुएंस, अच्छा प्रभाव लगा रहे हैं। वो तो बहुत पहले से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। बट आज के जो ज़्यादातर जजेस हैं वो हाई सुप्रीम कोर्ट लेवल में, हाई कोर्ट में अभी भी बहुत कमज़ोर लोग हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा है। मुझे तो टेस्ट केस है, वो जो गुजराती लेडी है, क्या वो तीस्ता एडवोकेट, उसको रिहा मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, फिर क्या करोगे? मुझ खाओगे। मोदी तो सरकार का अच्छा काम कौन सा है आप? ये नहीं, मैं तो बाहर हूँ गवर्नमेंट के, मैं कैसे बता सकता हूँ? फिर भी क्या, मारो उनको, फौज भेज के निकालो उनको। कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं मिनिस्टर था 2 बार किया था, उन्हें पब्लिसिटी नहीं दिया था उस समय जब नरसिम्हा राव थे। फिर वो आकर फिर वो लाइन तब वो तैयार हुए थे। फिर मैं गया कैलाश मानसरोवर खोल के लाया, जो कभी नहीं मानते थे, और मैं जाने के बाद कैलाश मानसरोवर खोला उन्होंने। तो चाइना का तो एक ही है, वो हाथ आगे बढ़ाएंगे तो मिलाएंगे हम हाथ, और डंडा दिखाएंगे तो पत्थर मारेंगे। चाइना और कोई भाषा नहीं समझती है, फिर समझती है डरपोक हो तुम, या तुम ऐसे गलत काम किए हो चाइना के साथ कि आप डरते हो कि वो कहीं बाहर ना आ जाए। ब्लैकमेल इसको कहते हैं। ये नहीं, बस नहीं तो इकोनॉमी फेल, चाइना फेल, हाँ, और हमारी जो प्रांतों में जो गड़बड़ हो रही है उसमें फेल। और क्या बोलना मुझे? राम मंदिर बनाया सर उन्होंने। राम मंदिर उन्होंने बनाया, तो तुम नहीं, उनके हितैषी होंगे। नहीं जो मसला चल रहा था इतने नहीं, सालों मैं नहीं तो कोर्ट में जाकर किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो उल्टा कहा कि सारा जमीन जो नरसिम्हा राव ने राष्ट्रीयकरण किया था उसको वापस कर दो। मोदी तो उल्टा कर रहा था, टांग अड़ा रहा था। सर आप कश्मीर में जो 317 वो तो आधा ही है, अभी कुछ हुआ नहीं ना। हाँ, कश्मीर में सख्ती से जो भी पास करेंगे, हमने कहा वो जो कानून की, वो अभी तक नहीं किया। अमित शाह से पूछो ना, वो आते ही आए हैं ना। इकोनॉमी सर आप बोल रहे हैं फेल है, तो थोड़ा मतलब पिछले हाँ बिल्कुल, 8 इंच के पीछे जो कुकी प्रजाति उनको सपोर्ट कर रही है बिल्कुल 100%। चाइना का तो सारा हमारी सीमा पर हर जगह में, ये प्रधानमंत्री से सवाल पूछो, वो बोलते ही नहीं है। उससे पूछो कि 4000 सुब्रमण्यम स्वामी आकर बोल कर गए हैं कि आपका पार्टी का मेंबर ही है, वो 4024 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हड़प कर ली है हमारी, जो दोनों साइड की मानी हुई, क्योंकि वो LAC बनाई गई ना, उसके पार करके आकर के यहाँ वो कहता है कोई आए ही नहीं। तो उनसे पूछो। सर लेकिन ये जो बट जहाँ तक मणिपुर है 100% चाइना का षड्यंत्र है, और वो और जगह में भी करेंगे, अभी उत्तराखंड में भी शुरू करेंगे। देखो चाइना को तो मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं चाइना भाषा जानता हूँ, मैं उनके बारे में पुस्तक अनेक लिखे हैं, मैंने हार्वर्ड में पढ़ाया भी चाइना। वो तो दिमाग बना ली उन्होंने कि हिंदू, अब अमेरिका और चाइना 2 ही देश होना चाहिए, बाकी और नहीं होना चाहिए। अब मोदी गए थे अमेरिका, एक शब्द नहीं चाइना के लिए बोला, यानी ना मोदी ने बोला ना बाइडेन ने बोला। क्यों? क्योंकि चाइना तो बहुत बड़ा है, हम इंडिया कैसे बोलने देंगे। हिंदू राष्ट्र के बारे में सर आपका क्या कहना है? हाई कोर्ट ने तो मेरा पिटीशन भी सुना दिया, जो मैंने कोर्ट में फाइल की थी। राहुल गांधी
को अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या फैसला मिलेगी मैं नहीं कह सकता, परंतु निश्चित तौर पर उनको ये क्या बचकाना ही क्या मैं कहूँगा, काहे कि ये मोदी वोदी इसमें क्या, ये कोई जैसे वो जो चुटकारा का होती है इन्हीं नाइट क्लब्स में कोई आता है वैसे ही है। अभी ये कोई कहने की बात है, उससे बदनाम भी करने की कोशिश हो रही है, तो उसको ज़्यादा देश में जो इकोनॉमी है जो ख़राब हो रही है उसका क्या करना चाहिए, चाइना को कैसे हम भगा सकते हैं। मोदी तो कहता कोई आया ही नहीं, तो मैं उसको कह नहीं सकता, परंतु मैं जानता हूँ कि 4024 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन लद्दाख का चाइना ने हड़प कर लिया है, उसको छुड़वाने के लिए कहो। अब मैं तो चिट्ठी विट्ठी लिखा हूँ बट नहीं सुनते हैं, तो कई चीज़ें हैं जो होना चाहिए, परंतु वो राहुल गांधी तो सारी बचकाना बात करता है। सर महाराष्ट्र की राजनीति को आप किस तरह देख रहे हैं? ये सब यानी आज ये पूछोगे तो कल दूसरा कुछ हो जाएगा, तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ेगा। सर सारे मैं से ऐसा हास्यास्पद परिस्थिति मैंने कभी मेरे राजनीतिक जीवन में देखा नहीं। सर आपको क्यों लगता है कि जब एनसीपी के जो नेता आप नहीं मानेंगे तो अलग बात है, हमने बंटवारा किया था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। नहीं, जब मुसलमान ने कहा कि नहीं हमें अलग देश चाहिए, हम और कुछ नहीं मांगेंगे, नहीं हमें और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए, तो जब आपने अग्री कर लिया है तो शेष तो हिंदू राष्ट्र है। मुसलमान रह सकता है हमारे देश में, परंतु उसका संस्कृति हिंदू होना चाहिए ना। वो अरब जैसे के वेश पहन के इस देश में रहेंगे, परंतु मैं उनको कैसे कह सकता हूँ, यहाँ कितने लोग अंग्रेज़ की ड्रेस पहन के बैठे हैं, यहाँ कुर्ता पजामा भी कभी पहन लो। सर एक चाइना के बारे में जो आप बता रहे तो वो जो शिवसेना के जो रिबल नेता है वो क्यों उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे, क्यों आपको ऐसा लगता है? बिकॉज ये मोदी किसी को ज़्यादा दिन रखता नहीं है, तो इनका काम हो गया, तो इनको अब दोबारा कोर्ट से बचना ये सब बहुत मुश्किल है। ये जो लोग टूट के आए थे, और अब इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो जितना चाहिए था नंबर्स में वो एनसीपी से जो बगावत करके आए हैं वो कर सकते हैं, तो इनका छुट्टी करके भेज देंगे। सर ये मणिपुर के जो हालात है आपको करते कि वो अरे वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो मुझे देश से निकाल देना चाहिए। ओके सर, लेकिन सर जो पिछले दो जो बिल आए थे, किसान का जो फार्मर बिल था हाँ। वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, एनआरसी जो एनआरसी था, और वो जो दूसरा जो सिटीजन का जो बिल था वो भी इम्प्लीमेंट, तो आपको लगता है ये गवर्नमेंट ये जो यूसीसी है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी? नहीं, बिल पावर नहीं वो कर ही नहीं। देखिए वो तो मंदिरों को से सरकार को बाहर निकालने की जगह में कई जगहों में मैं अभी कोर्ट में जा कर के लड़ रहा हूँ। उत्तराखंड में ऐसा हुआ, फिर कोर्ट में गया तो फिर वापस हुआ निकले। अब महाराष्ट्र में एक कृष्णा का मंदिर है जिसको वहाँ हमारी बीजेपी की जो मिली जुली सरकार है उसने अपने हाथ में ले लिया, जो हमारे सिद्धांत के विरुद्ध में। तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो पार्टी के सबको मिलकर तय करना चाहिए कि भाई तुम सिद्धांत से इधर उधर नहीं हो सकते हो। मोदी बहुत मनमानी कर रहा है इस विषय में। राम सेतु में राष्ट्रीय धरोहर का यानी बोलने के लिए इनको क्या संकोच है? कोई मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, कोई नहीं है वहाँ, तो क्यों मैंने राम सेतु को तो बचा दिया, नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको दो टुकड़ा करने वाला था। वो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट ऐसा लगा कर उसको मैं सुप्रीम कोर्ट में उसको रद्द करवाया। अब फिर मैंने कहा कि अब इसको एक राष्ट्रीय धरोहर बना दो, तो क्योंकि आगे कोई नहीं छू सकेगा फिर। तो अब मोदी नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? तो मुझे लगता है आप गुजरात के लोगों की दायित्व है, ये मेरा दायित्व नहीं है ठीक करने के लिए। सुनाया चार्ल्स को, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो हमारे देश की जो हिंदूकरण है वो उसको थोड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। सर तो अभी जो डिस्कशन चल रहा है, उनको बताया कि हमने देश की जब विभाजन की थी तब ये तय था
और ये डॉक्टर अंबेडकर ने एक पुस्तक में लिखा भी है कि जिन्ना चाहते थे एक मुस्लिम पाकिस्तान। और माउंटबैटन ने 2 तारीख जून 1947 में उसने एक पिटिशन, ये एक ऑर्डर निकाला जिसमें उसने कहा कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट अब इस पर विचार करेगी कि हम 2 इंडिया का बांटेंगे और एक को मुस्लिम पाकिस्तान होगा और दूसरा एक हिंदू इंडिया होगा। बाद में महात्मा गांधी तो शुरू से यही थे कि ये विभाजन नहीं होना चाहिए था, बट जवाहरलाल नेहरू ने फिर बाद में ऐलान कर दिया कि जो मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ने नहीं चाहते हैं उनको आवश्यक नहीं है। हम भी नहीं कहते हैं कि मुसलमान को निकालना है, परंतु आप हिंदुस्तान में रहेंगे तो आपका जो मज़हब का सवाल है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं ने कभी किसी का नहीं किया, वो पारसीज़ का नहीं किया, यहूदियों का नहीं किया। इतने जो रिलीजन्स हैं एक का भी उन्होंने परसिक्यूशन नहीं किया, किसी की यानी दुरुपयोग नहीं किया। तो हमें यानी देश में, हमारे देश में मुसलमान हैं, इसका कोई इतराज़ नहीं है, वो इसी मिट्टी के हैं सब। लेकिन जहाँ तक इस देश की जो कला संस्कृति है वो हिंदू होगी, ये हमारी पहले से सोच थी। उसको ये सेक्युलरिज्म के नाम पर हम सब लोगों को भुला दिया है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये दायित्व है बीजेपी का कि वो सरकार में हैं तो इस देश की जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति, वो मैं धार्मिक सवाल नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम कृष्णा और रामा और शिवा और विष्णु को मानो, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो संस्कृति है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या गाय का यानी रक्षा करने की बात हो, ये सारी चीज़ों के अनुसार और जो रहन सहन की जो है वो एक साथ होनी चाहिए। मैं मुसलमान के लिए सिर्फ नहीं कहूँगा, मैं तो कहता हूँ कि हमारे हिंदू भी जो संस्कृति आ जा रही है नाइट क्लब्स की और जिस प्रकार के जो यानी जिस तरीके से देश शराब की जो विकास हुई है वो तो मैं समझता हूँ कि इस देश को डुबा देगा। इसने कई देशों को डुबाया है, यूरोप में कई देश अब डूब गए हैं इसमें, इस कारण से। तो वो जो पुराने हिंदुओं की जो संस्कृति थी उसको अब एक नया रूप देकर उसको लोगों को समझाना चाहिए। स्कूलों में और कॉलेजेस में रामायण और महाभारत को पढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो धार्मिक नहीं है, वो एक इतिहास है। और इस इतिहास को, क्योंकि उसमें राम और कृष्णा है इसीलिए हम उसको नहीं होने देंगे, ऐसा सोचना चाहिए। इस प्रकार की जो धर्म जो पुनरुत्थान जिसको हिंदी में कहते हैं, पुनरुत्थान को लानी चाहिए। और संस्कृत को किसी तरीके से तेज़ी से अब सबके एक भाषा बननी चाहिए, क्योंकि विदेशों में अब जो अनुसंधान और शोध हो रही है उसमें एडवांस जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें संस्कृत है। आप इंग्लैंड में जाएंगे तो सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी में, जेम्स स्कूल में वो बच्चों को 6 साल के बच्चे से 6 साल के बच्चे से 11 साल के बच्चों को अनिवार्य संस्कृत श्लोका की जपने के लिए सुबह आधा घंटा के लिए खड़ा करते हैं। ये सब गूगल में मिलती है, गूगल में जाकर देख सकते हैं। अभी चार्ल्स की जो यानी जो कॉरोनेशन हुआ था उसमें भी इस स्कूल के